Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about chemical reactions. Now we are going to study about applications of chemical reactions. We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. Chemical reactions are very important for the survival of living organisms. The first application of chemical reaction is that fuel on its burning drive vehicles. In this process, fuel burn in vehicle engine and produce different gases. These gases so produce develop pressure on the piston in the engine and then to run the vehicle. The next application of chemical reaction is that burning of fuel cook food. When the fuel burns, then it produces heat, and then this heat is used to cook food. In industries, chemical reactions are also used. Similarly, industries burn the fuel and then this heat is used to convert water into steam. The next application of chemical reaction is fermentation. In this process, we convert milk into yogurt and produce different bakery products by using microorganisms. These reactions or these chemical changes are very important and gives us variety of food. And the process of converting one product into another product by using microorganisms is known as fermentation. The next application is photosynthesis. During this chemical reaction, carbon dioxide react with water in the presence of sunlight and chlorophyll and produces glucose and oxygen. In this reaction, you can see that when 6 molecules of carbon dioxide react with the 6 molecules of water, then we will get 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. This reaction takes place in the presence of sunlight and chlorophyll, and by this reaction plants are able to make food. So this reaction is very important for all living organisms. Chemical reactions are also used in respiration. During this process, the oxygen in the air reacts with the food and produces carbon dioxide, water, and energy. This carbon dioxide is removed from the body during the process of gaseous exchange, and the energy that is produced during this process is used to perform all the body functions in living organisms. So this is also a very important chemical reaction that takes place in the bodies of living organisms, as this reaction provides energy to living organisms to perform their activities. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हमें बेशुमार केमिकल रिएक्शन से वास्ता पड़ता है, इसलिए केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करनी है वो है कि फ्यूल ऑन इट्स बर्निंग डिराइव व्हीकल्स, यानी जो फ्यूल्स हैं जब उनको बर्न किया जाता है तो उससे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं. गाड़ियों में जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह, जब गाड़ियों के इंजन्स में वो जलता है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. ये जो गैसेस होती हैं ये इंजन में जो पिस्टन्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं और इस प्रेशर की वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो हरकत करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल कुक फूड. किचन में जो हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं वो भी फ्यूल है. जब वो बर्न होती है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो हीट है इससे हम फूड को कुक करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है कि इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल्स की बर्निंग से जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस स्टीम को मुख्तलिफ़ किस्म की टर्बाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और केमिकल रिएक्शन जो हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होते हैं. फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम एक एशिया को किसी दूसरी एशिया में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, यानी दूध का दही में तब्दील हो जाना या जितनी भी बेकरी आइटम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ये सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं और फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स में भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. तो इस तरह इन केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शन की वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो होते हैं वाटर लेते हैं सॉइल से, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर से एब्जॉर्ब करते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है जिसको एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है.
ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास एट द एंड ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जबकि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं। इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हवा में रिलीज़ कर दिया जाता है जबकि जो ग्लूकोज है उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान हो रहे हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शन की रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के अमल के दौरान भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हवा में मौजूद ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और एनर्जी हासिल होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है जबकि जो एनर्जी है इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो होने वाले रिएक्शंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज दीज रिएक्शंस प्रोवाइड एनर्जी। Okay students, the applications of chemical reactions are: the first application is fuel on its burning in vehicle engine produces different gases. The gases so produced develop pressure to move the piston in the engines and to run the vehicles. The next application is heat produced during burning of fuel in our kitchen is used to cook food. And the third application is heat produced during the burning of fuel in industries is used to produce steam for water, and then this steam is used to run turbines. The fourth application is about photosynthesis. During photosynthesis in plants, carbon dioxide and water react to produce glucose and oxygen. This reaction takes place in the presence of sunlight and the green pigment chlorophyll. The next application is about respiration. During respiration, the oxygen of air react with the food, which is glucose, to produce carbon dioxide and water in the cells of living organisms. The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organisms, which means that the energy that is produced during the process of respiration is used to perform all the activities of living organisms. The application number 6 is conversion of milk into yogurt and formation of baking products involve the chemical changes which are brought about by microorganisms. Such chemical changes or reactions are called fermentation reactions. एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.9 है कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 63। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और इसी तरह इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। टोटल 6 पॉइंट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस का इतलाक यानी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस की वो थी कि फ्यूल्स गाड़ियों के इंजनों में चलने के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस खारिज होती हैं और ये गैसेस इंजन के पिस्टन पर प्रेशर डालती हैं जिसकी वजह से गाड़ियों में हरकत पैदा होती है। नेक्स्ट जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस की वो थी कि बावर्ची खाने में फ्यूल्स के जलने से पैदा होने वाली हीट को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के जलने से जो हीट पैदा होती है इस हीट को पानी को स्टीम में यानी भाप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान भी केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल होते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। ये अमल सूरज की रोशनी और सब्ज़ पिगमेंट यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान भी केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल होते हैं। इस अमल के दौरान जानदार इत्साम के सेल्स में खुराक और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान पैदा होने वाली एनर्जी से जानदार इत्साम मुख्तलिफ अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। एप्लीकेशन नंबर 6 है फर्मेंटेशन। दूध का दही में तब्दील होना और बेकरी के प्रोडक्ट्स बनने के अमल के दौरान केमिकल रिएक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं और ऐसे केमिकल रिएक्शंस को फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहा जाता है। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.9 है कि केमिकल रिएक्शंस का इतलाक बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 53 पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और जिस तरह अभी हमने इसको पॉइंट्स में डिस्कस किया आप भी इसको इसी तरह ही प्रिपेयर करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए गए हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।